Namaste and welcome to this exciting episode of Sattology Debunking Mythology. आप सबका इस नए सत्तोलॉजी एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सबका धन्यवाद भी कर रहा हूं कि आप सब ने यू हैव मेड अस क्रॉस 75,000 सब्सक्राइबर्स डिस्पाइट बीइंग ए वेरी डिफिकल्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब। आप सबके सहयोग से आज हम लोग 75,000 सब्सक्राइबर से ऊपर जा चुके हैं और आप सबका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो टुडे आई एम गोइंग टू टच, अभी आप लोग सब लिखिएगा, लिखते रहिएगा क्योंकि लाइव शो है, तो आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं आंसर देता रहूँगा। और मेरी नई बुक रिलीज हो चुकी है, द ओरिजिनल एटलस। उस बुक को आप सभी लोग खरीदें। आप अगर सत्तोलॉजी सर्च करते हैं अमेजोन में, मेरी सारी पुस्तकें मिल जाएंगी एंड ऑल माई बुक्स आर बेस्ड ऑन रामायण एंड महाभारत हिस्ट्री एंड लॉट ऑफ पुराण कॉम्बिनेशन ऑल्सो, रामायण महाभारत पुराण, क्योंकि कई बार जो है मुझे उस जगह को वेरीफाई करने के लिए मुझे पुराणों की भी बहुत आवश्यकता पड़ी। सो दिस टाइम फॉर दिस बुक आई रेड ऑल द 18 पुराण, ऑल द रेलेवेंट सेक्शंस एंड ऑल द, जितना मैं पढ़ सकता था मैंने पढ़ा पुराण में, सो दैट आई गेट कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। तो इस बुक को आप पढ़ के पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, क्योंकि पूरा विश्व का प्री हिस्ट्री इज ऑल हिंदू। Most of the American authors like Jordan Peterson and other जो आजकल पॉपुलर हैं, they only present history from the point of view of Europeans. They have no idea about the native history, indigenous history. They do it from a Christian perspective. But I do from the native indigenous perspective and from a Vedic, Puran and Ramayana Mahabharata perspective. The best books on geography in the world are Ramayana, Mahabharata, and Puran. There is no other comparison, and no other book, no other book in the world describes the world so clearly. The solar system, nakshatra, tara, which you call the stars, tara, graha, chandra, and all the planets, Budh, Som, Shukra, और अंगारका, इसको बुद्धि बोलते हैं, बुध और अंगारका सेम है. And these are all mentioned very clearly and their paths in Vedas. No other books cover that. No other books cover that. The whole movement of sun and moon and different graha and how they're positioned, how they move on earth, कैसे चलते हैं सारे ग्रह पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी पे क्या प्रभाव पड़ता है, all those things are very much explained. So cosmology, the best book for cosmology are the Purana and Mahabharata Ramayana. No other books in the world come even close. So my challenge to all the Western or European Christian groups and other groups is, and especially the science groups, Elon Musk would love my book and research if he reads this book. And that is covered in Ramayana, Mahabharata, and Puran. So the book title, some of you may be knowing and some of you may not be knowing, is called The Original Atlas. Okay? It's available now and is also coming on Barnes and Nobles. And I will be in Jaipur Dialogues. You can meet me. I'm from 1st November onwards. I'm touring India. So you can meet me in Jaipur on 4th and 5th of November. You can meet me in Patna on 6th November. You can meet me in IGNTU, which is in Amarkantak, on 8th November, 7th and 8th November. You can meet me over there. Bhopal on 9th November and 10th onwards, my plan is still evolving based on your invitations and based on your call. जहाँ पे आप organize करेंगे, I'll be happily there. So today, let's go to Philippines, because Philippines history, Philippines is a word which is created after a Spanish conqueror, Filipinos. So आप लोग, we all right now what is happening in the, if you look at the what is happening in the world, Palestine conflict, Gaza conflict, this is going on for years actually,
and it is a deliberate political connections. You can see protests everywhere. And so my request to you is stay away from all these politics right now. Let's focus on the Shastra. Stay away from सारा पॉलिटिक्स से दूर रहो, शास्त्र पे फोकस करो। ये चीज़ें चलती ही रहेंगी, दुनिया में चलती रहती है। लेकिन जो लोग अपने शास्त्र, अपने धर्म, हरि नाम जप इधर लगे रहेंगे, उनको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द सेम टाइम, we contribute positively to the society. We contribute in a very positive way to the society. What Sattology does is we bring out research, bring people back to the roots. And for that, you require peace. You cannot do things without peace. And peace is only attainable when you do yoga. Yoga means meeting Paramatma. Very clear. Meeting Paramatma is called yoga. So it's like when you do perform your japa, tapa, swadhyaya, and then you try to, then you meet Paramatma, and that's where you get peace. And no other place you get peace. आपको बहुत सारे एनालिस्ट आते हैं, हमारे चैनल पे भी आते हैं. They do very good talks, analyze the current situations for you. And we also do that in many current topics. You must have seen my videos, Rameshwar Mishra Pankaj ji ke saath, Kusumrata ji ke saath, so that you understand the real history, what's going on, what is the background. And the most decolonized people, you'll be shocked to know. सबसे ज़्यादा decolonized people कौन होते हैं? Hindu. We are the most decolonized people in the world. Everyone else is colonized. The Chinese Communist Party has further colonized Chinese people. Spaniards have colonized South America, Mesoamerica, and Philippines and many territories. British have colonized many countries, USA, Canada, Australia, New Zealand. These are all colonies of the Britain. And everywhere, natives, indigenous people, or people like us, Sanatan, they also follow Sanatan Dharma. They believe in nature. They worship nature. So we are all colonized by these people with their all faulty, imaginary ideas about civilization and false morality. False morality इससे बोलता हूँ, they all talk about compassion, human rights. Okay, only human rights. उस पे पूरा दुनिया चल रहा है आजकल. People, if you follow me on Twitter, you'll see people talk about humanity. And I asked a question: what happened to Bangladeshi Hindus? Are they not human? What happened to Pakistani Hindus? Are they not human? My question, basic question. What happened to the indigenous people, the Mayans and the Toltecas and the indigenous people of South America, Mesoamerica? Are they not humans? My question to all of them. Are they not humans? So, and everyone is quiet. Why? Because this gives them political might. They get the reasons to political protest. And we from Sattology, we trace to stay out of all politics. Even though we love politicians, but we stay out of politics everywhere. Because there someone has to do some real work in the world. Yeah? So anyway, that was my small rant. Pasand aaya, nahi aaya, ignore it. So now let me just go back to the topic today. Okay. Do like, share, subscribe. सबको बताइए हमारे चैनल के बारे में. 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए ताकि more opportunities come and more people watch us. More and more people watch us. Our videos are very informative. All our discussions are very to the point and based on facts, hard facts, or books. And we try to dissect the history writing skills of दुष्टास of India. दुष्टा का समझ में आ गया आपको? दुष्टा कौन है? बहुत बार लिखा है मैंने, तो आप बता दीजिएगा कौन है दुष्टा. And keep asking me questions today. You'll love the show today. So let me begin about the Philippine history. Okay, so I'm going to show you the map, which you will love it. Share screen, and I'm going to show you the. Let's go to the my favorite tool, Google Earth. Okay, this is Philippines. बहुत छोटा सा देश है ये. Okay, if I have just highlighted the places where I want to show you, but this is all Philippines. Okay, these are all Philippines, and this is Brunei,
and there are some provinces which is mentioned here, uh, and it is part of the Malaysia, uh, and uh, and but this is all Philippines. If you look at Davao, it is part of Philippines, southern Philippine Islands, Mindanao, and I've been to Philippines couple of times, so I've traveled across Philippines many times. And this is the island of Cebu, which is currently occupied by many Muslim groups which came from Malay. So, what is the ancient name of Philippines? What is the ancient name? So, if you hear the story, if you read this book of mine, and I hope you can see in the video, if you read this book of mine, then you'll see that Philippines uh, was part of the Malay Peninsula. मलाय के इसको मलाया बोलते हैं, मलय देश। और सबसे फेमस इंसिडेंट क्या है महाभारत का मलय देश के बारे में? जब सहदेव को दक्षिणी दिशा की यात्रा करनी थी, तब वो घटोत्कच को बुलाते हैं मलय द्वीपों से, क्योंकि उसके पहले जब पांडव उत्तरी दिशा में गए, व्हेन पांडवस वेंट टू द नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तरी दिशा में गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से घटोत्कच ने अपनी पीठ पे पांचों भाइयों को बिठाकर, चारों भाइयों को बिठाकर उसके राक्षसों के साथ घुमा रहे थे पहाड़ों से पहाड़। So that's how you'll see they crossing over huge mountains on the backs of Ghatotkaч. That was a history. Okay, that's a recorded history. और इसको धौम्य ऋषि ने देखा, many other rishis were there who saw it. Just like today also, maybe 1,000 years later, आज का इतिहास चल रहा है, तो वहाँ पे रिकॉर्ड्स टच करेंगे कि ये शो किया था आदित्य सत्संगी ने, या ये शो किया था इसमें, जैसे ऑल दिस थिंग्स वी आर रिकॉर्डिंग राइट नाउ, we are it's a live show, but what we are presenting right now, all those things were visible during that time also, you know? And तो वो जो records है हमारे, they will people are going to quote those records that see this was done like this. Contemporary records are very important. जैसे कि रोमन्स ने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करते थे रोमन्स, और रोमन्स यूज्ड टू राइट, एंड रोमन्स ने कभी जीसस को देखा ही नहीं, इतना डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद भी उन्होंने कभी मतलब फॉर देम जीसस नाम का कोई आदमी था ही नहीं, एंड दैट वाज द बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज कमेंटिंग कि जीसस नाम का व्यक्ति कोई एग्जिस्ट ही नहीं किया, इट वाज अ माइथोलॉजी। और ऐसा ऐसा अकॉर्डिंग टू द करंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, जैसे जो आप देख रहे हैं ना, जैसे अगर महात्मा गांधी को 10 लोगों ने नहीं देखा होता, उनके बारे में नहीं लिखा होता, तो 1000 साल के बाद लोग बोलेंगे महात्मा गांधी इज ऑल्सो माइथोलॉजी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत देर देखा। सेम लॉजिक अप्लाइज टू भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण was seen by millions of people. Everyone has written record. Narad Muni saw, Pandavas saw, many people saw, many people recorded, and the places where he visited are all entrenched in stone. जहां भी गए वहां पे पत्थर गड़ गया, मंदिर बन गया, यहाँ पे आए थे ये। जैसे आजकल क्या होता है, पॉलिटिशियन जाके अमेरिका में हाईवेज को इनॉग्रेट करते हैं, उनके नाम पे हाईवेज डाल देते हैं। जैसे बाइडेन हाईवे भी होगा, बाइडेन म्यूजियम भी होगा, ऐसा होगा। इंडिया में इंदिरा गांधी, हर जगह गांधी 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 का आप देखते हैं, एयरपोर्ट्स भी, राजीव गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट, राइट। सेम वे अभी जो आजकल चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, इसका किया, हर जगह जाके वो दे पुट द स्टोन देयर विद द मार्किंग। सेम हैपेंड इन महाभारत टाइम आल्सो। Wherever the Mahabharat, wherever leaders of Mahabharat went, Arjun went, where they put a stone. So जब भी अर्जुन कहीं जाते थे, वो हमेशा जो चिन्ह चिन्ह डालते थे, उनका जो चिन्ह डालते थे वो डालते नारायण का या फिर महादेव का। समटाइम्स महादेव का या नारायण के जितने भी जगह गए वहां पे मंदिर बने हैं। और तो इसी तरह घटोत्कच ने इंडोनेशिया में, वो अगले शो में हम कवर करेंगे, इंडोनेशिया में पांडवों का अपने जिन पांडवों के पिता हैं, शायद पांचों भाई, मगर भीम के पुत्र हैं, लेकिन पांचों पिता हुए, 5 फादर ब्रदर्स हैं वो सारे। उन्होंने पांचों का मंदिर बनाया इंडोनेशिया में, है? और और जो हमारे जो मतलब बाद में पांडवों के बाद खमेर आए, जो वियतनाम और इधर थे,
इन लोगों ने मलय देश में बहुत सारे विष्णु के मंदिर बनाए अपनी पुरानी यादों से, और बहुत जगह शिव जी के मंदिर भी बनाए और दुर्गा के मंदिर भी बनाए। क्योंकि ये मलय देश जो है, ये सारे जो आते हैं, जो पूर्वी दिशा में है आते हैं, ये सारे आते हैं भद्राश्व वर्ष में। भद्राश्व वर्ष मतलब शिव जी की भूमि। तो मेरू पर्वत की पूर्वी दिशा के जितने भी स्थल हैं, सारे भद्राश्व से कनेक्टेड हैं, मतलब शिव जी की भूमि, शिव पार्वती की भूमि। तो यू विल फाइंड मैक्सिमम शिव टेम्पल्स देयर, मैक्सिमम शिव टेम्पल्स। ये ट्रेंड है। और अगर आप सेंट्रल एशिया में जाएंगे, केतुमाल में जाएंगे, यू विल फाइंड मैक्सिमम श्याम वर्ण या कृष्ण या विष्णु टेम्पल्स देयर, जनरली स्पीकिंग। क्योंकि हर जगह शिव जी और विष्णु जी की आराधना इंटरचेंजेबली होती है कल्चर में। मैंने स्टडी में अभी स्टडी किया है उसको, तो आई कैन टेल यू विद कल्चरली, मतलब एक्सचेंजेबल स्टडी मतलब होता है। कहाँ शिव जी का मंदिर होगा, वहाँ विष्णु का भी मंदिर होगा। भारत में भी हम देखते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी है मेरा फेवरेट प्लेस इन इंडिया, एंड सेकंड इज रंगनाथ। तो आप दोनों जगह जरूर जाइएगा जब भी आपको समय मिले। इस बार भी आऊंगा तो मैं रंगनाथ आ रहा हूँ, तो अगर आप लोग वहाँ मिलना चाहते हैं, वहाँ पे भी मिलेंगे हम लोग रंगनाथ मंदिर में। और जगन्नाथपुरी भी आ रहा हूँ, तो जगन्नाथपुरी में भी मिलेंगे। तो दोनों जगह पे यू विल सी, रंगनाथ के बाहर भी महादेव का मंदिर है, और जगन्नाथपुरी के बाहर भुवनेश्वर शहर ही बना हुआ है, भुवनेश्वर पूरा। वृंदावन में भी आप देखेंगे कि गोपेश्वर महादेव भी है, और वृंदावन तो है ही, सबको जानते हैं, सब जानते हैं। तो दिस इज द वे इट गोज। तो केतुमाल वर्ष में आपको दोनों मंदिर बहुत सारे मिलेंगे। भद्राश में आपको शिव जी के मंदिर ज्यादा दिखेंगे हर जगह। तो मोस्ट ऑफ द यू विल सी, बट इन सम प्लेसेस लेटर हिस्ट्री में, खमेर का हिस्ट्री काफी बाद का हिस्ट्री आता है खमेर का, वो भी हिंदू राजा है, वो भी लोकल हिंदू राजा है, उनका भारत से कोई संबंध नहीं है डायरेक्टली। ऐसा लोग बोलते चोला गए वहां पे, नहीं, उनका भारत से ज्यादा कोई संबंध नहीं है। वो ट्रेडिशनली शुरू से चीन, तिब्बत, ये सब हिंदू राष्ट्र हैं, सभी सभी। एंटायर ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया टू डाउन टू द साउथ टू मलय, वो सारे हिंदू राष्ट्र हैं और हिंदू एरियाज हैं। हिस्ट्री इसी को इग्नोर करने के लिए नए नए नाम दिए गए, जैसे फिलीपींस। फिलीपींस जो नाम है, ये एक फिलिपिना एक करके जो इनके जो एक राजा है, मैं एक्चुअली अपने नोट्स खोल रहा हूँ, तो इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है किंग फिलिप टू ऑफ कस्तीले लास इस्लास फिलिपिनास। जितने भी स्पेनिश पोजेशंस है, फिलीपीन इज ए स्पेनिश कॉलोनी। इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट, अभी तो दे, आई मीन इफ यू गो टू फिलीपींस का, मैंने जो आपको मैप दिखा रहा हूँ, you will not find a single local Filipino identity there. Everything is controlled by the church. इसीलिए गरीब भी है. That's why Philippines is poor, because controlled by the church. Same happened with everywhere. South America, all the countries are poor or with lot of problems because they have colonial masters for Portuguese or Spanish. So there is no hope for South America to become rich unless they give up the colonial connections. But they can't give now, because they were very clever. Spaniards did not allow the women to marry their own people. They could marry only Spanish men. This is how they did, and took them back to Philippines. Most of the slaves of Philippines were taken to Spain. It's Philippines colonial history is the most painful history, one of the most painful in Asia. Because Spaniards, they killed ruthlessly. They were without any vengeance. What you're seeing in Gaza today, 1,000 times more happened in Philippines by the Spaniards. People hide this history. And what these people did was install their own religion. मैंने इंग्लिश में इसलिए बोला ताकि जो इंग्लिश में सुनने वाले वो भी समझे कि जो गाजा में आज हो रहा है उसका 1000 गुना ज्यादा फिलीपींस में हुआ। उन्होंने 100 साल में पूरी की पूरी पॉपुलेशन को फोर्स से कन्वर्ट कर दिया, तलवार के बल पे। और इनके इनके जो पादरी कैसे होते हैं, एक हाथ में तलवार लेके चलते हैं, एंड द वन हैंड दे टेक द बाइबल। इफ यू डोंट बिलीव इन बाइबल, आई एम गोइंग टू किल यू। सेम व्हाट मुस्लिम्स डिड, सेम हैपेंड इन फिलीपींस बाय द कैथोलिक चर्च। ओके, कैथोलिक चर्च, इनका कैथोलिसिज्म इज द मिलिट्री आर्म ऑफ द चर्च, ऐसा बोल सकते हैं आप। वो ऑलमोस्ट लाइक, अभी तो आजकल बड़े सभ्य बनते दिखते हैं, बट उनके कर्म बहुत खराब है। टुडे दे लुक वेरी सिविलाइज्ड in the tribe, but what they have done in the past is horrible.
And that's what Philippines is suffering. And the military base, American military base also came there in Philippines. So we'll feel, and we have a lot of, I have a lot of friends in Philippine American community here. तो उनके साथ में बहुत उठता बैठता हूँ, मिलता हूँ उन सबसे जाके. तो काफी अच्छे लोग हैं, very good people like us. They are like Hindus. Many things are like Hindus, and very good community, very wonderful community, very friendly community, America में. But anyway, history is history. History has no, uh, what can you say? History, because the history is always black and white. That's why I always tell in my books also that all political leaders must be worried about what will be written about them in the history books. Just like आप जवाहरलाल नेहरू को देखिए. Jawaharlal Nehru did his best to hide his all his plans, right? How he was cooperating with the British to destroy his own culture, enemy of his own culture. But today, what history is talking about him? Isa, I leave it up to you. What history is talking about him? आज इतिहास में जवाहरलाल नेहरू को किस तरह लोग देखते हैं, आप सभी जानते ही हैं. आप सभी उसके बारे में बात भी करते हैं, है ना? तो सभी जो राजनीतिक लीडर्स हैं, चाहे किसी भी कंट्री में हो, they need to understand the how history will speak about them after they go away. What will history write about them? They need to be worried about it, because once it comes out, then people are going to question everything. Future generation, you know. मेरे गुरु ने एक बार मुझे बात बोली थी, डोंट सेट रॉन्ग प्रेसिडेंट्स. कोशिश करता हूँ नहीं करो हमेशा, बट मैं हमेशा याद रखता हूँ बात कि कोई ऐसा एग्जाम्पल मत सेटअप करो जो बाद में आपको मुश्किल करे, बाद में आपके जो परंपरा पे आघात हो. सो एनीवे, लेट्स बिगिन टुडे. तो ये हिस्ट्री, ये मैप जो आपको दिख रहा है, ये सारे जो नेटिव साइट्स हैं दिखाते हैं जो वो है, लेकिन मैं आपको इसे कहीं और लेके जाऊंगा, बिकॉज दिस इज नॉट द रियल फिलिपिन हिस्ट्री. तो फिलिपिन का हिस्ट्री क्या है, मैं बड़ा शॉर्ट में पढ़ता हूँ आपको, एंड देन वी विल मूव ऑन. तो एक आदमी था, रूई लोपेज दे विलालोबोस. उसने लेते और समर, समर दुनिया का समर जानते हैं, संस्कृत नाम है समर, है ना? उसको उसने देखा, फिलिपिना नाम दिया, क्योंकि वो आदमी, उसका नाम था किंग फिलिप. तो वहां से बन गया फिलिपीन. और फिलिपीन का इतिहास ये है कि अगर आप जाएंगे, एक वहां पे जगह है, ताबोन केव्स करके कोई है, ताबोन केव्स. और वहां पे जो मंदिर, बहुत सारे मंदिर भी हैं, और वहां पे संस्कृत शब्दों में लिखा हुआ है, कीवी स्क्रिप्ट में संस्कृत शब्दों में लिखा हुआ है. और कवि कवि एक स्क्रिप्ट होती है, कवि, विच इज लाइक ए तमिल, तमिल या तेलुगु, एक्चुअली तमिल, मोर तमिल, लाइक तमिल. और वहां पे उधर लिखा हुआ है मायले, मायली, मलाई का ही अपभ्रंश. इट इज अ मलाय, बट संस्कृत में मलाई है, बट चाइनीज रोट इट माली, मायली. सेम थिंग, सेम थिंग, सेम वर्ड्स. हमारे संस्कृत इज मोर एक्यूरेट. जो संस्कृत इज द old language of Philippines called Tagalog. Tagalog. Tagalog means based on the island of Bantu. आजकल उधर बहुत सारा हुआ है, बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं, लेकिन many many names are same actually. In fact, their greetings are mabuhay. Mabuhay is one of their old traditional greetings of Philippines. And you'll find a lot of, today nowadays many Sindhi businessmen are there. When I was doing some work for Philippine Stock Exchange, तो वहाँ पे मैं आई गॉट ए चांस टू स्टडी देयर कल्चर इन डिटेल. तो मैं उनके गाँव में भी गया, बहुत जगह उनके अंदर अंदर के गाँव में गया, और मैं काफ़ी लोगों से मिला वहाँ पे चर्च के पादरियों से मिला. और सबने एक बात एग्जिस्ट करी कि हमारे कनेक्शंस भारत से ज़्यादा है. एक्चुअली प्रॉब्लम भारत में क्या है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है कुछ करती नहीं है अपने कल्चर के बारे में. उनको लगता है कि वेस्टर्न तरीके से लोगों को समझाएगी. भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कुछ करता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है. हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं, बट इफ इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स विद अस और हम लोग उनके साथ काम करें, इधर वेज इज फाइन.
तो हम लोग काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियन एम्बेसी, इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं, वो इतना नैरो माइंडसेट में रहते हैं एंड दे ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ वेस्ट ऑल द टाइम। मतलब ब्राउन अंग्रेज, कोकोनट जैसे ऑफिशियल्स हैं, उनको लगता है कि जस्ट हम एक पैरट करते रहे वर्ल्ड इसका। दो नोवेयर दे मेक ए चांस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर शुड बी पार्ट ऑफ एवरी एम्बेसी ऑफ इंडिया। मैं आपको बताऊँ, बड़ा आश्चर्य, जब मैं पेरू गया था और मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वास्तविक बता रहा हूँ कि जो पेरू का जो इंडियन एम्बेसी इन पेरू है, उसने मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया। इवन दो फॉर वन रीज़न कि मेरे पास इंडियन सिटीज़नशिप नहीं है, मेरी सिटीज़नशिप यूएस की है। लेकिन वो बात अलग, लेकिन काम तो मैं रामायण का कर रहा हूँ, कल्चर कहाँ का है वो? रामायण महाभारत तो भारत से ही है। तो जब मैंने उनको हेल्प के लिए बोला, तो कोई आगे नहीं आया। लेकिन जब मैंने अमेरिकन एम्बेसी को बोला, आई एम डूइंग समथिंग फॉर द नेटिव्स ऑफ पेरू, और ऑन द बेसिस ऑफ रामायण महाभारत, वो भी मैंने क्लियर किया। द एम्बेसी ऑफ अमेरिका, यूएस एम्बेसी provided me all the vehicles and took all the permissions also. So even though it is not their culture, they all know that I'm a Hindu American, I'm not Christian American, I'm a Hindu. But as an American citizen, they help me. And I'm really grateful for that. I really help thank them for the State Department for doing that for me. But I when I went to Indian embassy, उनको पूछा तो बोल रहे, what is the need? What is the need? ये भी क्वेश्चन पूछा, आपको क्या जरूरत है, ऐसा पूछा उन्होंने। बट एनीवे हिंदी में पूछा था मैंने वहाँ पे, बट मैं नाम नहीं लूंगा किसी की भी, बट इट्स ओके। सो लेकिन भारतीय गवर्नमेंट को चाहिए, इधर जाएं, लोगों से भी बात करें, बोलें कि ये तुम्हारा कल्चर है, स्पेन को भूल जाओ भाई, हमसे कनेक्टेड हो। अभी हम उनको वेपन्स भी बेच रहे हैं ना, फिलीपींस को ब्राह्मोस मिसाइल बेचा, अब उनको कुछ और प्लेन बेचने वाले हैं हम लोग, तेजस या प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। तो ये भी बात करें भाई कि भाई अभी तुम अपने पुराने कल्चर में आ जाओ, नहीं तो गरीब ही रहोगे भाई, है ना? क्योंकि वो फिलीपींस तो हमारा ही देश है, हमारे जैसे ही लोग हैं, सोचने का तरीका भी वैसे ही है। तो 15वीं शताब्दी में वहां पे सबसे पहले आया स्पेनिश चर्च, 15वीं शताब्दी में, और फिर उसके उनको फॉलो करते करते आ गए आपके मुसलमान भी आ गए वहां पे, इस्लाम भी आ गया बाद में। वो आया मलेशिया से, मलेशिया पहले गए, फिर बाद में वहां पे, क्योंकि आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। एंड द इन द इन द फिलीपींस, इफ यू सी, इन्होंने क्या किया, जितने भी चर्च बने हैं, जैसे ये चर्च बना हुआ है बेल चर्च का, ये मैंने चर्चेस को इसलिए हाईलाइट किया, ये मंदिर के ऊपर ही बना हुआ है। जैसे हमारा मंदिर होते थे, इन्होंने पुराने मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मंदिर बना दिया। ये मंदिर, ये पहले शिवालय होता था, शिवालय पाओए का, ये शिवालय था, और इसका कंफर्म इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि ये शिवालय था, 18वीं शताब्दी तक शिवालय था ये। इसका कंफर्म इंफॉर्मेशन है, इसका नाम था पिंगलेश्वर महादेव, पिंगलेश्वर। तो अगर आप शास्त्रों में देखेंगे, लिंग पुराण में इसका वर्णन आता है कि मलय देश में पिंगल, ये बेल चर्च के नाम से फेमस है नॉर्थ में। और मुझे बड़ा आसानी है करने का, नेटिव साइट्स ऑफ सर्च करना है, जहां चर्च मिले उसी को रिसर्च करना है। जस्ट जस्ट लाइक इंडिया में जैसा हुआ, तो वैसे मुझे रिसर्च करना है। सिंपल मेथोडोलॉजी, आप लोग भी ढूंढ सकते हैं ऐसे। बट आपको इस बुक में सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे, सारे रेफरेंसेस इंक्लूडिंग जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं। और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सारे कॉन्टिनेंट्स कवर्ड है। क्योंकि हमको सब कुछ गलत बताया गया है, हमको सोलर सिस्टम गलत बताया गया है, पृथ्वी के बारे में गलत बताया गया है। और शास्त्रों में लोग बोलते हैं मुझे, अरे शास्त्रों में तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है भाई, कॉन्ट्रडिक्शन है, पढ़ो मत, बहुत पता नहीं क्या क्या झूठ झूठ लिखा हुआ है हर जगह, ऐसा लोग बकवास करते हैं। बकवास है वो पूरा, कहीं नहीं कॉन्ट्रडिक्शन है। छोटा मोटा, अभी आप घर परिवार में बैठे हैं, अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब यूएसए, फाइव मेंबर्स ऑफ द फैमिली, five members of the family will describe USA in five different ways. But doesn't mean that if you combine all of them, it's the same information, but you got more information also, because every five of them had a different observation. And then you collect that information and then you form a logical conclusion. है ना? आप 5 लोगों के साथ बैठिए, 5 लोग अलग-अलग बातें करेंगे, फिर आप एक करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि 5 लोगों से कंक्लूड किया तो ये बात आया।
लेकिन हम लोग बोलते हैं पुराण में भी इस तरह का है। पुराण, if you look at पुराण, देन जो रोमहर्षण सूत के अंदर पुराण की कमेटी बैठी थी। रोमहर्षण सूत जो है, जो सूत गोस्वामी के पिता है, तो रोमहर्षण सूत के अंदर बैठी हुई है। और वो किसके अंडर काम कर रहे हैं? वैशंपायन के अंडर काम कर रहे हैं। वैशंपायन तो ओरिजिनल 4 गुरुओं में से हैं, है ना, जिन्होंने वेद लिखे। उन्होंने महाभारत भी बोली सबसे पहले, बाद लिखी नहीं, बोली जन्मेजय को। तो ऑल कनेक्टेड। हम इसको कई बार बात कर चुके हैं, वैदिक नॉलेज के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। तो वेद पुराण में कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैं संस्कृत में बात कर रहा हूँ। संस्कृत हैज नो कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन इज इन द ट्रांसलेशन, इन द ट्रांसलेशन ओनली। तो ट्रांसलेशन अवॉइड इट, मेक इट ए रूल। हिंदी के ट्रांसलेशन आर ऑल्सो नॉट गुड। मराठी, हिंदी, कोई भी ट्रांसलेशन, वो भी ऑल्सो नॉट गुड। बट once you read enough, you can understand Sanskrit. Agar if you know Devanagari, you can read Sanskrit. You don't have to need anything else, just Devanagari. पढ़ते रहिए, धीरे धीरे your mind will start working in संधि विच्छेद। जो कैसे शब्दों को जोड़ा गया है, कैसे शब्दों को काटा गया है। Once you know that, you don't need any Hindi after that. मैं हिंदी पढ़ता ही नहीं हूँ अभी। हिंदी I straight read Sanskrit। एंड मैं जैसे नीलेश जी ने बताया था, नीलेश ओक जी ने, कि आदित्य और मैं कैसे पढ़ते हैं। वी गॉट एक्सपीरियंस इन रीडिंग संस्कृत थ्रू रीडिंग, यू नो, लाइक आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे यू विल गेट यूज्ड टू इट। यू डोंट हैव टू सेपरेट डू सेपरेट क्लासेस। इफ यू नो देवनागरी, यू कैन रीड एनी पुराण, महाभारत, रामायण एंड ओरिजिनल बुक पढ़िए, ओरिजिनल बुक पढ़िए। मेरी बुक्स में मैं रेफरेंस देके बात करता हूँ फॉर पीपल हु वांट टू नो इन सिंपल इंग्लिश, फॉर अमेरिकन्स, और कुछ इंडियंस को भी, those who want to hear, but for Americans I read, put my books, and also for English speaking crowd in US. But many of my books are getting translated also. Now I have a lot of help available. In fact, I have 6 translators working with me on my books now. So that is a good news for everyone. And I'm going to slowly get publishing in India. I'm looking for someone very reliable publishers. I've identified 5 of them, and I'm going to work with them. 2 books already available through India Speaks Daily, संदीप देव जी, आप उनसे खरीद सकते हैं कपोत पब्लिकेशंस में, तो वो उनसे मिल जाएगा। और मेरी बुक से क्या होगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने के लिए, और दैट इज माय सक्सेस। इफ यू रीड माय बुक्स and get inspired to read the original content of Valmiki and Vyasdev, that is my success. Okay, I'll be very happy if you do that, very happy. वही मेरा पर्पस भी है। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, और जो लोग बाद में देखेंगे सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग को 1 लाख तक पहुंचना है दिसंबर तक, so that we can reach more people with our content. We are always non-political, purely Hindu content, and based on Hindu analysis, based on Shastra, and also content which is based on Veda, Ramayana, Mahabharata, and Purana. Very important, all of them Purana. Since some of you may not know, may know, the best way to understand Veda is through Purana, because that's why Purana were written, to make it the history, to make it the philosophy very interesting. जैसे कोई कड़वी दवाई खाता है, तो अगर बच्चे कड़वी दवाई तो खाएंगे नहीं, तो उनको शहद में मिक्स करके दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि जो शहद इज नॉट रियल, शहद इज ऑल्सो रियल, हनी इज रियल, medicine is also real, but when you combine the two, it easily gets into your blood system. Okay, so Puran is also real history, and वेद तो ऑलरेडी वेद है। सत्य मतलब, अगर हम बोलते हैं सत्यमेव जयते, मीन्स वेदों की जय। सत्यमेव जयते मीन्स वेदों की जय, क्योंकि वेद ही सत्य है। सो सेम वे पुराण इज ऑल्सो रियल, Ved is also real, Upanishads are also real, but you combine them together and have Mahabharata, you'll get all the result. इसलिए महाभारत को पंचवेद बोलते हैं। पुराण is also, पुराण को, so you can understand Vedic philosophy very well in conversation. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बहुत सारी चीजें आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, और तब हम दोनों एक दूसरे की बात समझ जाएंगे। एंड व्हेन यू पुट योर ब्रेन इन दिस डायरेक्शन, आपको जो भौतिक प्रॉब्लम्स है, अदर प्रॉब्लम्स है,
थोड़े टाइम के लिए आपको छुटकारा मिल जाता है। एंड अगर आप वैसे ही रहते हैं 24 घंटा तो आपको प्रॉब्लम्स टच नहीं करेंगे, है ना? ऐसे बोला जाता है कि जब पुराण, महाभारत, रामायण जब आप पढ़ते हैं, तो मृत्यु भी आपको छूती नहीं है उस समय, ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में। लेकिन एनीवे वी वोंट टच देयर। और अगर आपको इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स टुडे, वी हैव टू गो बैक इन द हिस्ट्री, otherwise we won't decolonize ourselves, you know. We will keep discussing, this politician said this politician said that, tomorrow somebody else will come, after that somebody else will come, this cycle will go on and on and on. Why will we waste our time, our human life? The purpose of human life क्या है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, इनसे ऊपर निकल जाओ भाई, निकल जाओ, आज से निकल जाओ हरिनाम के माध्यम से, है ना? हरिनाम हमारे लिए व्हीकल है, उस हरिनाम पे चढ़ के निकल जाओ, है ना? ऐसा बोलते, कलेर दोष निधे राजन अस्ति को महान कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम। चाहे राम का नाम लो, चाहे कृष्ण का नाम लो, हरि का नाम लो, वामन का नाम लो, नरसिंह का नाम, कोई भी नाम ले लो, शिव जी का नाम लो, दुर्गा माता का नाम लो, नवदुर्गा चल रहा है, माता दुर्गा की स्तुति करो, क्योंकि वो तो गोपेन्द्र दर्शन नंद गोप कुलोद्भवे, है ना? वो करें, जो भी लगे, जिसमें इच्छा, गणेश जी में इच्छा हो गणेश जी का नाम लो, जो आपको इच्छा लगे करो, लेकिन समवेयर गेट कनेक्टेड टू पुराण, महाभारत, रामायण, किसी भी देवी देवता की। अर्जुन ने देवी जी की स्तुति करी, देवी की स्तुति करी, कृष्ण ने आदेश दिया देवी की स्तुति करो, युद्ध से पहले उन्होंने किया, है ना? तो जो भगवान राम ने जो है जैसे व्यासदेव ने महादेव की स्तुति करी ताकि उनको सुखदेव जैसा पुत्र मिले, वो किया उन्होंने। भगवान राम ने महादेव को स्थापित किया वापस महेंद्रगिरी पर्वत पे, साउथ अमेरिका में, सॉरी साउथ इंडिया में, वहां पे भी, और आपको उनके हर जगह मंदिर मिल जाएंगे। तो लेट अस कंटिन्यू आवर जर्नी हियर इन फिलीपींस। तो फिलीपीन का एंशिएंट हिस्ट्री ये है। फिर एंशिएंट हिस्ट्री में क्या किया स्पेनियर्ड्स ने, सारे स्लेव्स को, they took all the slaves from Philippines, took them to there, and they used Philippines as a territory during World War II also. If you look at the prehistory of Philippines में आपको पता लगेगा कि, और ये सारा most of the prehistory of Philippines is written by the uh, Spaniards. So that means all history is usually wrong. And I'll give you some examples. So like इन्होंने डियोसियन श्राइन एंड पैरिश ऑफ सेंट जोसेफ ये बना दिया। आपको मालूम है इस जगह पे पहले पिक्चर्स कौन सी होती थी, है ना? एक इनका एक और जगह है सेबू इंडियन टेम्पल, ये हिंदू टेम्पल है, लेकिन एक इनका ये भी है टेपेस्ट्री मोनास्ट्री। तो बुद्धिस्ट ने भी इस एरिया में बहुत सारा जगह फिलीपींस का अनसर्च्ड है ना? पारासल आइलैंड्स जो है वो भी अनसर्च्ड है। स्प्राटली आइलैंड जिसपे चाइना के साथ इनका लड़ाई चल रहा है वो भी अनसर्च्ड है। यहाँ पे लड़ाई चल रहा है पलावन, पलावन, इसका नाम ही आप सुन देखते हैं पलावन। और उसमें महाभारत में क्या रेफरेंस आता है, पाइलवन, पाइलवन, सेम नाम बदला नहीं अभी तक। और ये सारे आइलैंड्स अनडिस्कवर्ड है, लेकिन सब जगह नाम इन्होंने कर दिए, नाम चेंज कर दिए यूरोपियन हर जगह, कुछ नाम नहीं बदल पाए, वैसे रखा है उन्होंने। बट दिस मोनेस्ट्री इज ऑल्सो बिल्ट ऑन ए हिंदू टेम्पल, बिफोर इट वॉज ए शिवालय, लेकिन अभी उसकी उन्होंने चर्च बना दिया है। ये चर्च आप देख सकते हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हटा के उन्होंने चर्च डाल दिया है। क्योंकि मलय का जितना भी ट्रेड है हनोई वाला, यहाँ पे खमेर के राजा थे, खमेर के राजाओं ने पूरा एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था सारे आइलैंड्स पे, इंक्लूडिंग कलिमंथन। कलिमंथन इन्होंने डाला है कलियाम, क्योंकि हमारे जो पुराणों की कहानी है, कालिया मंथन, कालिया स्नाग, कालिया जो नाग था फ्रॉम वृंदावन, और ये रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और बड़े बड़े आचार्य, और बाद में प्रभुपाद ने भी बहुत रिपीट किया इसको, और बाकी आचार्यों ने भी रिपीट किया कि जो कालिया नाग था, जब भगवान ने उसको बोला कि तुम वृंदावन छोड़ के चले जाओ, ऐसी लोगों की मान्यता है। और शायद इस नाम से इसको काली मंथन बोला गया है, क्योंकि परंपराओं पे
कभी कभी हमको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेफरेंसेस, कभी कभी साधु पुरुष एक से दूसरे की बात रिपीट करते रहते हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने बोला, उन्होंने बोला, उन्होंने बोला, ऐसे चलता रहता है। और बाद में आप जाके वेरीफाई करते हैं तो नाम भी उधर रखा है, काली मंथन। तो कालिया नाग के बारे में सभी जो योगी, हमारे आचार्य और ये सब जो हमारे जो गुरु हैं, बोला कि ये फिजी की तरफ चले गए सबके सब, फिजी की तरफ। अब फिजी थोड़ा साउथ में है, अगर आप देखें ध्यान से, तो फिजी ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ आता है, फिजी आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, और ये फिजी इस तरफ चले गए। बहुत लार्ज इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे। मैं काफी साल पहले वहाँ पे गया था, तो आई हैव गुड आइडिया अबाउट दैट प्लेस। तो उस तरफ है। और अगर आप रामायण देखें तो पूर्वी दिशा से ही ट्रेवल जाती है टू सुदर्शन द्वीप, फिर पुष्कर द्वीप, और पुष्कर द्वीप में जाके बात होती है सोमनस शिखर की, जहाँ पे वामन देव ने पहला पैर रखा, वो पुष्कर द्वीप पे है। और बाद में उसको सोमनस को बोलते हैं मानसोत्तर, ऑल्सो मानसोत्तर। मानसोत्तर पहाड़, जैसे हम सूर्य के मूवमेंट की जब बात करते हैं, तो इंद्रपुरी से लेके संयमी तक, तो फिर वो संयमी को बोलते हैं सोमनस के दक्षिणी, और फिर वहां से वो सुखावती सूर्य जाते हैं, मतलब वो वरुण का नगरी है। फिर उसके बाद चंद्र की नगरी चले जाते हैं, विवाह विभावती, वहां चले जाते हैं। ये सूर्य के 4 कॉर्नर्स हैं जहाँ पे वो घूमते हैं। और इसको बोला जाता है कि मेरू पर्वत से शुरू होते हैं, और फिर से मेरू, मानसोत्तर, और सुखावती, एंड नॉर्थ पोल में बोलते हैं सोम। तो उधर चारों जगह ऐसे घूम के सूर्य का नगर चले जाते हैं। तो ये सब डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं कि सूर्य के सामने 60,000 वाल्कीली के ब्राह्मण, वाल्कीली ऋषि उनकी स्तुति कर रहे हैं, अरुण स्तुति कर रहे हैं, उनकी तरफ बैठ के स्तुति कर रहे हैं, देन यू सी दैट हाउ दिस प्लेसेस विल बी देयर। और अब मुझे थोड़ा सा ज्योतिषी में इंटरेस्ट भी आना शुरू हुआ है, एस्ट्रोनॉमी में, ज्योतिषी में, एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सी कि ये जगह चलती कैसे हैं, कि हाउ इज इट कनेक्टेड, हाउ इज इट कनेक्टेड, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। तो ये जो जगह है, मैं बुक से अपनी पढ़ रहा हूँ, दिस बुक द ओरिजिनल एटलस। मेरी सारी बुक्स कंटिन्यूएशन में है। ये दिस द लेटेस्ट बुक, इसमें मैंने 1 साल काम किया है, बट स्टिल आई फील that a lot more needs to be done. लेकिन this book will has enough material, a lot of material. All the Ramayana Mahabharata places are mentioned there with geographic coordinates, and where you can go and you can do tarpan, pitra puja. पितृ पूजा बहुत जरूरी है। पितृ पूजा इज पितृ और देवता पूजा is extremely necessary for every human being. Ancestor and also devata, everyone, deus, they call it in Latin, deus and ancestors, pitra, everyone needs to worship, and that is a common worship in all the spiritual places of the world. When you don't do pindadan, don't do shraddha, and don't do any of those activities, which is एक हमारे मेरी मित्र हैं मीनाक्षी शरण जी, उनका भी जो प्रोग्राम है श्राद्ध वाला, उस पर जरूर जुड़िए आप। बहुत अच्छे उन्होंने कार्य करते हैं, उधर भी आप जुड़िए, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू पितृ तर्पण, for not only for people who fought for us and people who died, but also for people who are, तो ये कल्चर हम सेटअप करेंगे, नहीं तो फ्यूचर के लोग हमारे लिए कैसे करेंगे पितृदान, अगर हम इसको भूल जाएंगे तो वी हैव टू रीस्टार्ट दीज एक्टिविटीज आल्सो। तो जितनी भी प्लेसेस हैं, वैदिक प्लेसेस, महाभारत रामायण प्लेसेस, वहां पे देव पूजा और पितृ पूजा दोनों साथ में होती है हर जगह। And this book has geographic coordinates of every single place mentioned in Ramayana Mahabharata. Some places I could not mention because वो सब एकदम गायब कर दी गई, and those are in the places like Philippines. Philippines is one place where Spaniards have done total destruction of the native culture, zero preservance, for which, because Spaniards will get a lot of bad karma for rest of their lives, and they're already poor. They're already poorer than the colonies now, and they'll get more poor. So now the colonies have to think, all the people who speak Spanish now, where the language was not Spanish, they have to kick out the Spanish language, and not only kick out the Spanish language, but anything connected to Spain, if they want to become rich. And Philippines should do that because they're part of the Malaya.
And Indonesia also does do something. We'll cover Indonesia some other ways, but we'll cover Philippines first today. Philippines is a difficult country to cover, by the way. So, so मैं बहुत लंबा बोलता रहूँगा, आप बुक्स को जरूर पढ़िएगा. एंड बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं. थैंक यू सो मच. पल्लवा डायनेस्टी के सिद्धार्थ इज अ न्यू मेंबर. वेलकम सिद्धार्थ. And you're setting a good example for everyone, and everyone should also follow. And Bhupender Sharma ji, thank you very much. सिद्धार्थ अगेन बोल रहे हैं 75K. थैंक यू. संदीप दंतानी, थाईलैंड में गणपति की पूजा होती है. छतरी, बिल्कुल सही बोला. एक्चुअली इंडोनेशिया में उनके मंदिर है, 5 पांडवों के मंदिर है. तो डेंग उनको बोलते हैं, टेम्पल्स ऑफ डेंग. यू कैन सर्च इट इन माय बुक इज आल्सो, यू कैन सर्च इट. Tagalog from the river even to Pasig River or river the Batangas from. Bilkul, absolutely right. Absolutely right. That is correct. It is coming from Pasig River and Batangas province. But the actual name of the language was different. Actual name was Malay, Maila. That's the actual name. Tagalog is coming from river. Are a riverine people like, so this is the history that they show. Like for example, tomorrow somebody may write, oh, the people of Vrindavan were riverine people living next to Yamuna. This is the narrative. This is how the Europeans confuse. So let me put the same way about UK. Oh, UK was one of the countries where the Themi people were living there. Themi, bank of the river Thames. This is European. This is Indian. As an Indian, I'm saying they're all Thames. Why Thames? Because they lived near the river Thames. This is stupidity of European historians. One of the most evil historians in the world are the European historians. Okay? They destroyed the history of every single place. Even the today's Palestine-Gaza conflict is created by them, but Israel has a place there. Israel was before 1947. Israel was there, so that is also a fact. Because आजकल maps तो कोई modify कर सकता है. Comment again आया सिद्धार्थ का कि so today science is a new religion, just theory still matters. That's true. We are debunking so many of them daily, and just by observation. You observe the sun movement. मैंने कल किसी को पूछा कि भाई दिखाओ मुझे कि चंद्रमा तो घूमता हुआ नहीं दिख रहा है. कोई देखा है रोटेशन करते हुए चंद्रमा? दिखा नहीं आज तक. अगर सूर्य भी सूर्य के चक्कर लगा रहा है तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देंगे when you ask them, and usually they say, oh, you are very evil. You're very evil. You know? Because you are not accepting what we are saying. Which is comedy actually. Anyway, worship nature, Pallava dynasty. Pallava means this thing. I must say this because of your energy. Thank you, Shraddharth. And maybe more people will get inspired to read our history, and which we are doing all the hard work. Nilesh is doing hard work. I'm doing hard. Everyone is doing hard work to create these kind of literature so that you can see this data more clearly. There are many places to cover for Philippines, but I want you to know that our culture, Sanatan Dharma, is all over the world. Sanatan Dharma cannot go away. It's not possible for it to go away because the reason it cannot go away because it is the original culture of the whole world. This whole Prithvi, even the RSS people won't believe that because most of them they don't believe in anything in any way. For them, अरे सब में चेंज हुआ है, किसको बिलीव करेंगे? They talk very well actually. ऐसा बोलते हैं बहुत सारे आरएसएस के लोग, लेकिन not all of them. There are some very good people also there in RSS. तो but ज्यादातर हिंदूवादी groups, these kind of हिंदूवादी groups don't add any value to anyone. So we have to go by परंपरा. रामानंदियों के पास जाइए, गुरु परंपरा में जुड़िए, निश्चलानंद जी के पास जाइए, शंकराचार्यों के पास जाइए, हमारी गुरु परंपरा में जुड़े. दैट इज द ओल्डेस्ट संघ और परंपरा. मध्वाचार्य की परंपरा में जाइए, रामानुज की परंपरा में जाइए, हर जगह परंपरा में जाइए. बिकॉज दोज आर द पीपल, they retain our traditions. They are non-political people, but at the same time they create warriors. आपको मालूम है जितने भी लोग भगवान राम और कृष्ण के भक्त, शिव जी के भक्त, they never
show their back on the battlefields. So मंत्र शक्ति के द्वारा आपका डिटर्मिनेशन बढ़ता है. तो एक क्वेश्चन आया, आप अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे तो बड़ा मजा आएगा मुझे. वर्शिप नेचर, प्लीज डू टेल मी योर रियल नेम. ओके, वर्शिप नेचर, प्रकृति पूजा, दैट इज आपका आदेश लग रहा है. वर्शिप नेचर, प्रकृति की पूजा करो. सनातन धर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं. भगवान बोलते हैं नित्य सनात, भगवान भगवद गीता में शब्द यूज करते हैं सनातना, यूज करते हैं शब्द. जब वो सनातन शब्द यूज करते हैं मतलब जिसका कोई न आदि न अंत, ऐसा बोलते हैं. अच्छा, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे समझेंगे? हाउ डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ह्यूमन पर्सपेक्टिव व्हाट इज सनातन? द रिलेशनशिप बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा कैन नेवर बी ब्रोकन. आत्मा और परमात्मा का रिश्ता कभी टूटता नहीं. जैसे माँ का और बच्चे का रिश्ता कभी टूटता नहीं है. इस जन्म में टूटेगा नहीं, एक ही माँ बाप है, कभी नहीं टूटेगा. तो बट हमारे परमानेंट जो है माता धाता पितामह पवित्रम वेदम ओमकार है ना, बोलते हैं ना, रिक्शा में जुड़े बच्चा. सो तो माता धाता पितामह, सो वो रिश्ता जो कभी टूटे ना, और उस रिश्ते के ऊपर कार्य करने के लिए ताकि वो रिश्ता जुड़ जाए वापस. कभी हम भूल जाते हैं, कभी हम भूल गए हैं तो माता पिता को भूल जाते हैं बहुत सालों, तो अरे मैं परिवार में बिजी हूँ, भूल जाते हैं. जब वो रिश्ता हम योग के माध्यम से स्थापित करते हैं तब वो बन जाता है ड्यूटीज, सनातन धर्म. सो सनातन धर्म मीन्स द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड to connect Atma to Paramatma back to our source, that is called Sanatan Dharma. तो उसका दूसरा नाम है योग. तो वर्ड सनातन धर्म और योग एक ही बात है. योग को भी बोलते हैं जुड़ना, वापस जुड़ना. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, है ना. लाइफ एंजॉयिंग मूड्स बोलते हैं कि तमिलियन किंग्स वाज स्प्रेड सनातन टू मलेशिया. वेरी करेक्ट, दे कंटिन्यूड दैट. तमिल के लोग ने किया. देखिए, जो पांड्य के राजाओं ने किया, पांड्य नरेश महाभारत के समय में भी बहुत रिच थे, इन्फ्लुएंशियल राजा थे, और बाद में सहदेव के साथ जुड़ गए सब लोग ना, सहदेव के साथ जुड़े वो लोग. तो देयर आर मेनी एंड तो दिस हिस्ट्री इज देयर. तो तमिल के राजा थे, इनको बोलते हैं पांड्या. पांड्य राज्य बहुत बड़ा था. बाद में पांड्य राजाओं का ही वंशज बन गया ट्रैवेनकोर, किंग्स ऑफ ट्रैवेनकोर. मैं जाऊंगा इस बार, तो हम सब लोग मिलेंगे वहां. वो इंग्लिश साइज नेम है, लेकिन ताम्रपर्णी करके आज भी नदी बहती है. इस बुक में सारी नदियों के, पुरानी नदियों के नाम है और सबके स्रोत भी है इस बुक में. तो यू विल बी हैप्पी टू रीड दिस बुक. तो बुक को प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी मेहनत इसके अंदर डाली है एंड पीपल शुड बेनिफिट फ्रॉम इट. एमपी मिश्रा जी बोल रहे हैं ऑल पुराने से एप्स. देखिए, अगेन यू टू अंडरस्टैंड, वेद और पुराण और विज्ञान एक ही है, क्योंकि ये हमारे सारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक है. मतलब जो देखते हैं, मतलब who observe things and who document things. Okay, and so everything is विज्ञान. मुझे कभी एक मीटिंग में जाना है, मेरे को लोग बुला रहे हैं बार बार, बहुत बार फोन आ चुका है, अभी 10 बार आ चुका है. तो बट मुझे आज सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा. अगली बार प्रमोट करिए इस तरह के शोज को, हमारे चैनल की वीडियोस को, ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट लें. हम लोग नॉन पॉलिटिकल बातें करते हैं, रिसर्च बेस्ड बातें करते हैं, और हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल भी अनसॉलिसिटेड रैंडम व्यू पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. ऑन आवर चैनल यू विल सी, वी ट्राई टू मेंटेन, अभी कहीं पे गलती होती है, वी ट्राई आवर बेस्ट to make sure we stick to the theme of the channel, debunking mythology from everything, including politics. So अगली बार मिलते हैं. टिल देन बहुत बहुत अच्छा. एक क्वेश्चन आ ले लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है. दर्शन कुमार भलानी का है, सनातन धर्म की रक्षा कैसे करें? सनातन धर्म की रक्षा करें, सबसे पहले अपने जीवन में सनातन धर्म का पालन शुरू करिए. यू बिकम द प्रैक्टिशनर.
Okay, you become the practitioner, and then you do that. So that's how you do it. And then उसके बाद WhatsApp का आर्टिस्ट से दूर रहिए, ऑन द ग्राउंड वर्क ज्यादा करिए. यू सोशल मीडिया. मैं कभी भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आज तक पोस्ट ही नहीं करता, कभी नहीं करता, और कमेंट से दूर रहता हूँ, अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नीडेड सम प्लेसेस, तब मैं करता हूँ. सो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करिए, सतोलॉजी कोर्स t.me सतोलॉजी कोर्स. ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, join our YouTube channel, and then we will do that. Okay. Namaste and thank you. MP Mishra ji, I will talk about this in another show, which you have seen. But do watch the playlist of Nilesh Oak and me talk all about science over there. Namaste and Jai Jagannath. Thank you.